Good morning students. Hope you all are fine and safe at home. Today we are going to start our new unit, Unit 4, that is Chemical Kinetics. This unit is very important and also helps to understand how chemical reactions occurs. Students, as you already know, substances with well-defined properties change into a new substance with the help of chemical reactions. Some main aspects related to chemical reactions you already studied in the previous class. The main aspects related to any chemical reactions which you already discussed in the previous class are: first, that is feasibility of the reaction. Feasibility of reaction. Feasibility means spontaneity of the reaction. Spontaneity of any reaction is decided by the factor Gibbs free energy. ये सबने पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने इस टर्म को पढ़ा था, which decide the spontaneity of any chemical reactions. If delta G is less than 0, it means reaction is spontaneous. If delta G greater than 0, then reaction is non-spontaneous. If delta G equals to 0, then reaction is in equilibrium. ये फैक्टर ने पढ़ा था, जी किस में पढ़ा था? थर्मोडायनेमिक्स में. नेक्स्ट फैक्टर related to any chemical reactions is the extent of reaction. Extent of reaction. The extent to which the reaction proceeds before equilibrium is reached. ये किस में हमने पढ़ा था? इक्विलिब्रियम में. Along with these two factors, the third factor which is very much important is the speed of reaction. Speed of reaction. Today in this unit, chemical kinetics, we deals only with the speed of reaction. As the name given, chemical. Chemical means chemical reaction. The word kinesis, the word kinetics comes from a Greek word kinesis, means movement. So chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the speed of reaction. Is the branch of chemistry deals with the speed of reaction. Speed की बात करें, it means how fastly the product will be formed. कितनी जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है. तो अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत जल्दी बन रहा है, इट मीन्स वो रिएक्शंस कैसी हैं? फास्ट रिएक्शंस. और अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट स्लोली बन रहा है, तो इट मीन्स रिएक्शंस कैसी है? वो स्लो रिएक्शन. Kinetics not only helps to understand the speed of reaction but also helps to understand the factors affecting speed of reaction or how reactants change into products, means mechanism of reaction. So it is the branch of physical chemistry which deals with the speed of reaction, factors affecting speed of reaction, and mechanism by which the reactions proceeds. Mechanism of a reaction. How reactants change into product. Thermodynamics tells about only the feasibility of the reaction. Equilibrium tells about the extent of reaction. It doesn't tell us about the speed or mechanism of the reaction. But in this unit, we completely discussed about the speed of reaction. Or speed of reaction also known as rate of reaction. or velocity of reaction.
अगर किसी रिएक्शन का रेट हाई है, इट मीन्स उसकी स्पीड हाई है, फास्ट है उसकी स्पीड। और अगर किसी रिएक्शन का रेट स्लो है, रेट की वैल्यू कम है, रेट कम है तो इसका मतलब उसकी स्पीड कम है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम स्पीड को किससे डिफाइन करेंगे? रेट वर्ड यूज करेंगे, रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो अब इसमें हम देखिए पढ़ते हैं ओनली स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन एक ही बात है। देखिए किसी भी रिएक्शन को स्लो और फास्ट, जैसे कि मैंने बताया कि अगर वो प्रोडक्ट्स फास्टली बना रही है तो रिएक्शन की स्पीड हाई है। किसी भी रिएक्शन को स्लो और फास्ट को कौन डिसाइड करेगा? डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? टाइम। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम किसी भी रिएक्शन की स्पीड को मेजर करेंगे वो किसकी हेल्प से मेजर करेंगे? टाइम। तो टाइम जो रहेगा वो मेजरिंग फैक्टर रहेगा फॉर एनी केमिकल रिएक्शंस टू स्टडी द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। अब इसमें देखिए जो इस चैप्टर में हम किसी भी रिएक्शन की स्पीड को किससे डिफाइन करते हैं? देखिए स्पीड के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड और रेट of any chemical reaction is equal to the change in concentration। अगर हम जनरल फॉर्मूला यूज करें तो जो यूज होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विथ चेंज इन टाइम। कंसीडर R reactant R change into product P। For this reaction, rate of a reaction is equals to change in concentration either of the reactants or products with change of time। कि टाइम के साथ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, दोनों के लिए इसको अलग अलग डिफाइन करेंगे। अब हम आगे, ये मैंने जर्नल लिखा है कि हम इस चैप्टर में जो रेट है किसी भी रिएक्शन का वो कैसे डिफाइन करेंगे, किससे मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टाइम। कि टाइम जैसे चेंज हो रहा है, जहां से हमने रिएक्शन स्टार्ट की है उसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो कितना चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में। अब जैसे कि ठीक है बेटा, अब इसमें आप देखिए अगर हम इसको लिखें तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं कि रेट आर से भी कह सकते हैं इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, सी मीन्स कंसंट्रेशन, डेल्टा साइन किसके लिए लगा है? फॉर अ चेंज, लार्ज चेंज। डेल्टा टी टाइम, चेंज इन टाइम। देखिए कंसंट्रेशन कब चेंज होगी? कंसंट्रेशन चेंज कैसे मेजर कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ चेंज इन टाइम। अब आप देखिए जिन रिएक्शंस के लिए जो चेंज इन टाइम है अगर वो बहुत ज्यादा है, टाइम इंटरवल इज लार्ज, अगर ये टाइम इंटरवल लार्ज है तो रेट क्या हो गया? रेट कम हो गया। रेट कम हो गया इट मीन स्पीड कम हो गई। देखो अगर टाइम इंटरवल लार्ज है, ज्यादा टाइम लग रहा है कंसंट्रेशन चेंज होने में, उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई। और अगर हम सेकंड पॉइंट बात करें, अगर ये टाइम इंटरवल कम है फॉर एनी केमिकल रिएक्शंस, अगर कंसंट्रेशन चेंज में टाइम जो है, टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल है, टाइम इंटरवल इज स्मॉल, टाइम पीरियड स्मॉल, देन रेट इज हाई, रेट ज्यादा हो जाएगा। रेट ज्यादा हो जाएगा इट मीन स्पीड ज्यादा हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो बेस्ड ऑन दिस मेजरमेंट टाइम रिएक्शंस डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस, देखिए अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शन 3 टाइप से कैटेगराइज हो गई। फास्ट रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस,
थर्ड वन इज मॉडरेट रिएक्शंस. देखिए फर्स्ट वन देखिए फास्ट रिएक्शंस. फास्ट रिएक्शंस में क्या होगा, चेंज इन टाइम इज वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल. तो बहुत ज्यादा स्मॉल है, जल्दी से रिएक्शन हो रही है, तो टाइम जो है वो कम लग रहा है, टाइम चेंज कम है, तो रेट जो होगा रेट हाई हो जाएगा. इट मीन स्पीड हाई हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी रिएक्शन. यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में होती है, अप्रोक्सीमेट 10 raised to the power -12 to 10 raised to the power -16 सेकेंड. इतना कम टाइम इंटरवल रहता है चेंज होने के लिए कंसेंट्रेशन को, तो प्रोडक्ट बनने के लिए. तो रेट इस रिएक्शन का बहुत ज्यादा हाई होगा, स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी इस रिएक्शन के केस में. मोस्टली जो फास्ट रिएक्शंस होती हैं वो इसमें एग्जांपल्स आते हैं. कौन सी रिएक्शन होती है, आयनिक रिएक्शंस. जैसे अगर हम मिक्स करें, देखिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 मिक्स्ड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो इमीडिएटली आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे AgCl के सॉल्यूशन में. तो दीज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट. तो ऑब्वियस रिएक्शन ये इतनी जल्दी हो रही है, जैसे ही हमने दो टेस्ट ट्यूब्स में दोनों सेपरेट लिए हुए हैं एक्वस सॉल्यूशन, इन्हें मिक्स करें तो इमीडिएटली आपको AgCl के वाइट पीपीटी मिलेंगे इन द टेस्ट ट्यूब. तो अब आप ये देखिए ये रिएक्शन इतनी फास्ट हो रही है कि जो ये चेंज इन टाइम है, टाइम इंटरवल जो है, ये हम मेजर ही नहीं कर पा रहे एक्यूरेसी से. देखिए अगर हम ये मेजर नहीं कर पा रहे एक्यूरेसी से, तो रेट भी मेजर नहीं होगा एक्यूरेट. तो इन रिएक्शंस के केस में जो रेट है, रेट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली. फास्ट रिएक्शंस के केस में रेट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, क्योंकि इतने कम टाइम में हो रही है. जैसे ही आपने मिक्स करा एकदम रिएक्शन हो गई, तो आप ये जो टाइम इंटरवल है, टाइम टेकन जो है इतना स्मॉल है कि आप इसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहे. तो इसलिए रेट जो है वो रेट भी एक्यूरेटली नहीं आएगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन रिएक्शंस के लिए आप रेट एक्यूरेट नहीं कैलकुलेट कर सकते. अगर टाइम इंटरवल जो है, टाइम टेकन आप एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हो, तो आप उस केस में रेट मेजर कर सकते हो. बट जो नॉर्मल है वो ये है कि इसमें हम मेजर नहीं कर पाते एक्यूरेटली. टाइम इंटरवल जो रहता है वो स्मॉल रहता है, तो रेट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली. सेम केस आप देखिए स्लो रिएक्शंस. स्लो रिएक्शंस के केस में टाइम इंटरवल जो है, ये टाइम टेकन इज वेरी लार्ज. स्लो रिएक्शंस की अगर हम बात करें, तो इन रिएक्शंस में क्या होगा, टाइम इंटरवल इज वेरी लार्ज. अगर ये बहुत ज्यादा होगा, रिएक्शंस को होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन ये तो है नहीं कि इमीडिएटली हो जाता है, मतलब रस्ट फॉर्मेशन बहुत जल्दी से हो जाता है आयरन के सरफेस पे, बहुत ज्यादा टाइम लगता है. तो इन रिएक्शंस में भी सेम प्रॉब्लम आती है कि ये इतना ज्यादा टाइम ले लेती है, ये टाइम टेकन इज वेरी लार्ज, सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली. व्हेन टाइम टेकन इज नॉट मेजर्ड एक्यूरेटली, देन वी कैन नॉट मेजर रेट विद एक्यूरेसी. तो इस केस में भी क्या होता है, रेट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली. तो स्लो रिएक्शंस के केस में भी हम रेट को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि जो टाइम टेकन है उसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहे. और जो सारे का सारा जो हमारा रेट होगा रिएक्शन का, वो डिपेंड करता है टाइम. अगर हमें ये टाइम इंटरवल जो है ये एक्यूरेसी से निकाल रहे हैं, देन वी कैलकुलेट द रेट. अब नेक्स्ट देखिए थर्ड, मॉडरेट रिएक्शंस. मॉडरेट रिएक्शंस में क्या होता है, जो टाइम टेकन होता है नाइदर मच स्मॉल नाइदर नॉर लार्ज, ना तो ज्यादा कम होता और ना ही लार्ज होता, मतलब इसमें बीच की रेंज में रहता है. टाइम जो है ना तो एकदम रिएक्शन हो जाती है और ना ही बहुत ज्यादा टाइम लेती है. कुछ फ्यू मिनट्स में रिएक्शन होगी, 10 मिनट्स 15 मिनट्स या 30 मिनट्स, मतलब मॉडरेट स्पीड रहती है. तो आप जो टाइम इंटरवल है, टाइम टेकन है, उसको एक्यूरेटली मेजर कर पाते हो. अगर एक्यूरेटली मेजर हम इसको कर रहे हैं, तो रेट भी हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. तो मॉडरेट रिएक्शंस के केस में रेट मेजर्ड एक्यूरेटली. तो इस यूनिट में केमिकल काइनेटिक्स में मेनली हम किन की बात करेंगे, मॉडरेट रिएक्शंस की. जो स्पीड कैलकुलेट करेंगे रिएक्शन की, वो किन रिएक्शंस की स्पीड को मेजर करेंगे, मॉडरेट रिएक्शंस. तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर मॉडरेट रिएक्शंस. मॉडरेट रिएक्शंस जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड
On decomposition forms water plus half O2. So for these reactions rate can be measured accurately. So first topic for this unit, that is rate of a reaction, because chemical kinetics only deals with the rate of a reaction. Rate of a reaction. रीजन क्या है? देखो, अगर हम पहले बात करें कि रीजन क्या है कि रिएक्शंस की स्पीड अलग अलग क्यों होती है. देखो, एज यू ऑलरेडी नो कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है, दे रिक्वायर्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स. फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड. डिफरेंट बॉन्ड्स रिक्वायर्ड डिफरेंट एनर्जीज फॉर देयर ब्रेकिंग एंड मेकिंग. So that's why different reactions occurs with a different speed. अगर हम आयनिक रिएक्शंस की बात करें तो आयनिक रिएक्शंस इतनी फास्ट क्यों हो रही है? उसमें देखिए, उसमें भी तो एनर्जी चाहिए होगी. उसमें होता है, देखिए, आयनिक रिएक्शंस इतनी फास्ट इसलिए हो रही है बिकॉज दे डजंट रिक्वायर्स एनी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बिकॉज आयंस आर प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशंस. आयंस मूव फ्रीली इन द एक्वस सॉल्यूशंस. So they easily forms a new compounds by combinations of cations and anions by new attractive forces. That's why these reactions are very fast. Because when we dissolve any ionic compounds into a water, it is dissociate into ions, or these ions form a new reactions. ठीक है, अब तो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, रेट ऑफ रिएक्शन. देखो, इस चैप्टर में हम 2 टाइप के रेट डिस्कस करेंगे. 2 टाइप से हम रेट को पढ़ेंगे. एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन. एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन मीन्स टाइम टेकन इज लार्ज. कुछ टाइम लग रहा है रिएक्शन को कंप्लीट होने में. ऐसा नहीं है कि इमीडिएट रिएक्शन हो रही है, इंस्टेंटेनियस, किसी एक पर्टिकुलर हम टाइम पे मेजर नहीं कर रहे किसी भी रिएक्शन को, एवरेज रेट मेजर कर रहे हैं, तो चेंज इन टाइम इज लार्ज. तो इसको हम किसी भी जनरल रिएक्शंस के लिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग डिफाइन करेंगे. देखो, एवरेज रेट अगर हमें किसी रिएक्शन का स्टडी करना है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए हम इसको अलग अलग डिफाइन करेंगे. फॉर एनी जनरल रिएक्शन, कंसीडर अ रिएक्शन, रिएक्टेंट्स आर चेंज इनटू अ प्रोडक्ट P. देन देखिए, फॉर रिएक्टेंट्स अगर हम डिफाइन करें, फॉर रिएक्टेंट्स, फर्स्ट रिएक्टेंट्स क्या है? R. तो रेट क्या होगा? रेट कैसे मेजर होगा? फॉर इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स, एवरेज रेट कैसे डिफाइन करेंगे? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम इंटरवल, चेंज ऑफ टाइम. कि जैसे रिएक्शंस प्रोसीड हो रही है, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हो रही है. इसको हम इस तरह से लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R विद चेंज ऑफ टाइम. डेल्टा मीन्स चेंज, लार्ज चेंज. R means molar concentration. This sign represents the molar concentration of reactants. Molar concentration of reactants. Delta T, change in time. So rate of a reactions measured
in term of change in concentration of reactants with time. तो आपको इसके साथ माइनस साइन मिलेगा बुक में. माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द माइनस साइन डिनोट्स द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम. माइनस साइन हमें ये शो कर रहा है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो जब भी आपको रिएक्टेंट्स की टर्म्स में रेट को डिफाइन करना है तो आप माइनस साइन लगाएंगे. ठीक है, तो रेट जो होगा रिएक्टेंट्स की टर्म में इस तरह से डिफाइन होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद चेंज ऑफ टाइम. देखिए अगर हम इसको फर्दर इसको डिफाइन करें, सपोज इनिशियली एट टाइम t1 कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की है R1, एट टाइम t2 फाइनल जब रिएक्शन पढ़े एट टाइम t2 फाइनल टाइम पे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है R2. हमेशा जो रिएक्शन जैसे प्रोसीड होगी तो फाइनल जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की वो हमेशा कम होगी देन द इनिशियल कंसंट्रेशन. इफ दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन और दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन, तो फाइनल कंसंट्रेशन इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल कंसंट्रेशन. तो डेल्टा आर क्या होता है, देखो डेल्टा आर क्या है, R2 माइनस R1. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन. तो ये फैक्टर क्या आएगा, अगर R2 कम है R1 से तो ये फैक्टर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव. तो हम इस वैल्यू देखिए, अब हम रेट को डिफाइन करें, देखो ये माइनस है R2 माइनस R1 चेंज इन टाइम. तो ये फैक्टर क्या होगा हमारा, देखो ये फैक्टर हमेशा रिएक्टेंट्स के केस में कैसा आएगा, नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा फैक्टर, पॉजिटिव. बिकॉज रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट नेगेटिव नहीं होगा. रेट को हम हमेशा कैसे डिफाइन करेंगे, रेट हमेशा पॉजिटिव होगा. तो यहाँ पे जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम. और जब हम चेंज निकालते हैं रिएक्टेंट्स की टर्म में तो रिएक्टेंट्स की टर्म में हमेशा जो चेंज आता है वो नेगेटिव आता है. तो इस फैक्टर के साथ अगर कंबाइन होगा तो वो क्या बन जाएगा, रेट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव. तो रेट हमेशा आपको आंसर पॉजिटिव निकालना है. तो इसीलिए हमेशा रिएक्टेंट्स के साथ ये माइनस साइन यहाँ पे लिखना है ताकि जो आपका रेट आए वो पॉजिटिव आए. और ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, कि टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो कम हो रही है. तो वहां से हम इसमें वन रिएक्टेंट्स का निकाल रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है बेटा, तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम. तो रिएक्टेंट्स को तो हम ऐसे मेजर करेंगे. फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए देखिए किस तरह से होगा. एवरेज रेट फॉर प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन जो हम कंसीडर कर रहे हैं अगर रेट जो डिफाइन करेंगे इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्लस प्लस साइन के साथ, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज ऑफ टाइम. डेल्टा रिप्रेजेंट द चेंज, P मोलर कंसंट्रेशन, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद टाइम. एट टाइम T1 इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज P1, एट टाइम T2 concentration of product is P2. Final concentration, initial concentration. Change in concentration of product P2 minus P1. When we measure the rate in term of products, then as you know P2 is greater than P1 because as the reaction proceeds concentration of products increases
and concentration of reactants goes on decreasing. P2 is always greater than P1. So this term, and we define the rate, this term always comes out to be positive. So in that case rate comes to be positive. तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की टर्म में मेजर करना है तो पॉजिटिव साइन के साथ हम इसको मेजर करेंगे रेट को, और डेल्टा साइन रिप्रेजेंट कर रहा है लार्ज चेंज। एवरेज रेट में क्या होता है, जो टाइम टेकन होता है, टाइम टेकन इज लार्ज, दैट्स व्हाई वी मेजर द एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज फॉर rate of a reactions when we defines the rate of a reaction in term of reactants as well as product। देखिए अभी हम इस पॉइंट्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम किसी भी रिएक्शन को लिए, हम ये ग्राफ बनाए, देखो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे हम रखें सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट्स के लिए अगर हम पढ़े इसको सबसे पहले फॉर रिएक्टेंट्स, वेरिएशन पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का विद टाइम। तो किस तरह का ग्राफ आएगा, फॉर एनी रिएक्शंस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, टाइम के साथ कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट्स की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब आप देखिए किसी भी पर्टिकुलर टाइम, ये टाइम है T1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स R1। एट टाइम T2 रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो गई, क्या होगी, R2। तो ये जो चेंज होगा, चेंज इन टाइम, ये फैक्टर हमारा क्या है, डेल्टा T, चेंज इन टाइम, दिस इज डेल्टा R, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रेट, एवरेज रेट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R विद चेंज ऑफ टाइम, ऐसे मेजर करें। ठीक है, तो ये तो ग्राफ हो गया रिएक्टेंट्स के लिए। प्रोडक्ट के साथ प्लॉट करें, टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होती है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट increases with time। at time T1 concentration of product P1, at time T2 concentration of product increases becomes P2। तो for product average rate is the increase in concentration of product with change of time। डेल्टा denotes large change in time, large change in concentration of product। तो ये इस तरह से वेरी करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स टाइम के साथ कि इस तरह से वेरी करेगी। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। डेल्टा ये लिख लीजिए, दिस इज यूज्ड फॉर लार्ज चेंज। तो ये तो हो गया एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए सेकंड, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए यहाँ पे मैं इसी ग्राफ से आपको बताना चाहूंगी, ये इंस्टेंटेनियस होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो रिएक्शन को हम इसमें मेजर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम गैप में, कि अगर रिएक्शन 1 o'clock स्टार्ट हुई है और उसके बाद 1:10 पे आपकी रिएक्शन हम कंप्लीट हो गई है, तो 10 मिनट्स का टाइम इंटरवल रहेगा, तो वो तो हो गया आपका एवरेज रेट। लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, बीच में किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फॉर अ सेकंड, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, अगर हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट मेजर करें किसी भी रिएक्शन का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की टर्म में, कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज हो गई है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, कितना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और कितने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो वहां पे देखो इंस्टेंटेनियस रेट में जो हमारा यहाँ पे टाइम इंटरवल होता है वो स्मॉल होता है, इज वेरी स्मॉल। या भी हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये टाइम इंटरवल होता है, चेंज इन टाइम इज ऑलमोस्ट अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो।
क्योंकि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ग्राफिकली इसी को मैं अगर इंस्टेंटेनियस रेट, देखो न्यूमेरिकल पार्ट से दोनों सेम है, बस यहाँ पे क्या चेंज होता है, जब हम इंस्टेंटेनियस रेट को मेजर करते हैं तो डेल्टा की जगह हम डी का साइन लगाते हैं, स्मॉल डी, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद स्मॉल चेंज ऑफ टाइम। और प्रोडक्ट के लिए भी हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद स्मॉल चेंज इन टाइम। फॉर इंस्टेंटेनियस रेट dt मीन स्मॉल चेंज, अप्रोचेस जीरो ही है, हम किसी एक चेंज की बात नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम देख रहे हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम डी यूज करेंगे, डी मीन स्मॉल चेंज इंस्टेंटेनियस रेट में, और डेल्टा मीन्स लार्ज चेंज। न्यूमेरिकल पार्ट से वैल्यूज दोनों की सेम है और मेजर करने के लिए वे भी सेम है कि यहाँ पे भी नेगेटिव साइन के साथ रिएक्टेंट्स की होगी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद टाइम। तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, अगर हम इस कर्व का स्लोप ले, स्लोप मेजर करें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो एवरेज रेट को डिफाइन करेंगे, तो स्लोप इस रिएक्शन का जैसे कि डिक्रीज हो रही है तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, dy by dx, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम, dy by dx। तो यहाँ पे कर्व की स्लोप की हेल्प से पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम इंस्टेंटेनियस रेट मेजर कर सकते हैं, dy by dx विद अ पॉजिटिव स्लोप, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग हम इंस्टेंटेनियस रेट मेजर कर सकते हैं। और ये चीज ये जो भी कर्व है ये प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मेजर की, और फिर 10 मिनट्स बाद या 20 मिनट्स बाद फिर से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मेजर की, और उसके बाद चेंज देख के, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद चेंज ऑफ टाइम, हम किसी भी रिएक्शन की कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड। इसी तरह से उस पर्टिकुलर टाइम गैप में हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को भी मेजर कर सकते हैं बाय मेजरिंग, किसको कैलकुलेट करने के लिए, रेट को कैलकुलेट करने के लिए। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम कंसंट्रेशन लें, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। और सम टाइम इंटरवल गैप की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज रेट। ठीक है बेटा, तो सिर्फ इसमें चेंज इस सिंबल का है, ये लगाना है लार्ज चेंज के लिए और स्मॉल डी लगाना है फॉर इंस्टेंटेनियस रेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, रेट ऑफ अ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड टाइम इंटरवल गैप इज वेरी वेरी स्मॉल, अप्रोक्सीमेट 0। तो ये 2 टाइप से डिफाइन होता है रेट, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। देखिए क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स change from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction. तो 2 टाइप से, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट पूछा, एवरेज रेट। रिएक्शन दी हुई है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर। तो देखो रेट, एवरेज रेट क्या फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम, डिक्रीज नेगेटिव बार आ जाएगा। देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी है, इतनी, डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन 0.03 से 0.02 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम इंटरवल 25 मिनट्स। तो यहां से इसको हम सोल्व करते हैं, नेगेटिव, ये नेगेटिव रहेगा आपका टर्म, ये सोल्व करेंगे, देखिए नेगेटिव और बाहर भी नेगेटिव, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। देखिए यूनिट इसकी ये होगी मोलर पर मिनट।
बिल्कुल सिंपल है। देखो रेट, यूनिट की अगर हम बात करें रेट की, तो रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल्स पर लीटर या फिर मोलर। मोलर कंसंट्रेशन हम यूज कर रहे हैं। टाइम, टाइम मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। तो यूनिट क्या रहेगी रेट की? मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, या फिर मोलर, मोलर पर मिनट, मोलर पर सेकंड। तो ये रेट की यूनिट सिंपल है, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। मोलर पर मिनट्स, मोलर पर सेकंड, या मोल्स पर लीटर पर मिनट, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चंस अगर आपको दिए हुए हैं और प्रोडक्ट की टर्म में होगा तो प्रोडक्ट के लिए क्या कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस इन 10 मिनट्स, इन 20 मिनट्स कैलकुलेट द एवरेज रेट। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन, रिलेशन ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन विद वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज relation of rate of a reaction with various reactants, various reagents, मतलब वेरियस सब्सटेंसेस, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ क्या रिलेशन रहेगा रेट ऑफ अ रिएक्शन का, ये हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए कोई भी जनरल रिएक्शन अगर हम लें, A प्लस बी फॉर्म C, तो यहां पे अगर हम मोल्स की टर्म में इसको डिफाइन करें, 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ C। ये इसको हम इस टर्म इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब 1 मोल A का कंज्यूम होगा तो वो कंज्यूम होगा बाय रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ B। B का भी कितना मोल कंज्यूम होगा? 1 मोल ऑफ B। और कितने मोल्स बनेंगे C के? 1 मोल C बनेंगे C के। तो अब हम रेट को अगर हम डिफाइन करें रिएक्टेंट्स के साथ, देखो तो अगर हम कहें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, अगर हम सबसे पहले बात करें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, तो वो क्या होगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद टाइम। ठीक है, तो जिस स्पीड से A कंज्यूम होगा उसी स्पीड से B कंज्यूम होगा, क्योंकि इनके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इक्वल है 1। देखिए अगर सपोज इसके लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है A के लिए वो है x मोलर पर मिनट, इतने स्पीड से ये कंज्यूम हो रहा है। x क्या है? रेट क्या होती है? स्पीड। तो इतनी स्पीड से ये कंज्यूम हो रहा है। तो B के भी कितने कंज्यूम हो रहे हैं? 1 मोल। C के भी कितने बन रहे हैं? 1 मोल। तो यहाँ पे अगर हम देखें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B लिखें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, तो वो भी क्या होगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद टाइम। तो उसका जो रेट रहेगा डिसअपीयरेंस का वो भी कितना रहेगा? x। वो भी कितनी स्पीड से कंज्यूम होगा? x। उसी से ही होगा क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इनके इक्वल है, 1 मोल है। C प्रोडक्ट है तो उसकी क्या होगी? अपीयरेंस, अपीयर होगा वो इन द रिएक्शन मीडियम या फॉर्म होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C क्या होगा? प्लस साइन के साथ। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद टाइम। अब देखिए 1 मोल A और B के जब कंज्यूम हो रहे हैं तो कितना ही मोल बन रहा है? 1 मोल ही बन रहा है C का। तो इसका भी रेट किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A और B। तो ये भी कितना आएगा? इसका रेट भी यहाँ पे कितना होगा? x होगा। तो अब आप देखिए अगर ये रिएक्शन इसी फॉर्म में बैलेंस्ड है तो हम इसमें रिलेशन पढ़ेंगे रेट ऑफ अ रिएक्शन का विद वेरियस रिएजेंट्स, वेरियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स।
if no stoichiometric coefficients is involved in any balanced reactions, तो देखिए सबका जो रेट होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और बी मींस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे रेट को कह सकते हैं कि इनका अगर हम इनके बीच में रिलेशन पढ़े, जो डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए रिलेशन पढ़े, तो क्या रिलेशन आ गए यहाँ पे, रेट के लिए रिलेशन पढ़े तो यहाँ पे सब क्या हो गए, इक्वल हो गए। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम इक्वल्स टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद टाइम इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद टाइम। कि पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो जितनी स्पीड से ए कंज्यूम हो रहा है उतनी ही स्पीड से बी कंज्यूम हो रहा है और उतनी ही स्पीड से सी फॉर्म हो रहा है। अगर यहाँ पे सभी के 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब का जो रेट होगा वो इक्वल होगा, कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ये तो हो गया हमारा पहला केस जिसमें ये स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो है ये सभी के इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सब 1 है। बट अगर आपके पास दूसरा केस है जिसमें यहाँ पे सम स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उस केस में इनका रेट इक्वल नहीं होगा। अगर हम इसको इस तरह से डिफाइन करें तो वहां पे चेंज हो जाएगी बात। तो वहां पे अगर हमें इन्हें इक्वल करना है, इनके बीच में इस तरह से रिलेशन पढ़ना है, तो कुछ चेंजेस होंगे। तो वहां पे स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व होगा इन द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट्स को भी डिफाइन करना है, अगर प्रोडक्ट्स को भी डिफाइन करना है, तो वहां पे जो रेट हम डिफाइन करेंगे तो वो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो होंगे वो रिएक्शन के पार्टिसिपेट करेंगे। उन रिएक्शंस के रेट को डिफाइन करने के लिए कोई भी अगर रिएक्शन है जिसमें इक्वल मोल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जैसे ये रिएक्शन है 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ बी एंड फॉर्म 3 मोल्स ऑफ सी। तो अब आप देखिए 1 मोल ए का कंज्यूम हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे। अगर हम रिएक्शन की बात करें, अगर 1 मोल ए का कंज्यूम हो रहा है तो उसी टाइम में 2 मोल्स बी के कंज्यूम हो रहे हैं और उसी टाइम में 3 मोल्स सी के फॉर्म हो रहे हैं। तो वहां पे जो रेट रहेगा वो इक्वल नहीं होगा इनका। तो आप अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग रेट को डिफाइन करेंगे और फिर उनके बीच में जब रिलेशन पढ़ेंगे तो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की हेल्प से होगा। तो इन रिएक्शंस में हम रेट को एग्जैक्ट डिफाइन जब भी कर सकते हैं जब हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो। तो इस रिएक्शन में रिएक्शन बैलेंस्ड होनी बहुत जरूरी है रेट को डिफाइन करने के लिए। तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जब अदर देन 1 स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आ जाएं तो तब हम रेट को कैसे डिफाइन करेंगे, बाय यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा 2 टाइप से रेट जो होता है रिएक्शन का, वो 2 टाइप से डिफाइन होता है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट व्हेन टाइम टेकन इज लार्ज, डेल्टा साइन, और इंस्टेंटेनियस रेट व्हेन टाइम इंटरवल इज स्मॉल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन वी मेजर द रेट। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम, और प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद टाइम। ठीक है, तो आप इसे रिवाइज कीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर दिस टाइप ऑफ बैलेंस रिएक्शंस हाउ वी मेजर द रेट ऑफ अ रिएक्शन। थैंक यू।